Okay, welcome back to the next session. Now we are focusing on chapter number 8, and chapter number 8 talks about invoice, debit note, credit note, and most important part is e-way bill. So there are four aspects to this, or three aspects to this: mainly tax invoice, then debit note, credit note, and then lastly e-way bill. So I'm teaching you this chapter directly from the revision section, and you have to revise it from that section only, because you cannot practically read all the chapters line to line, provision to provision. Sometimes you have to go for the shortcut, and this is the shortcut that you can read only charts given by ICA toward the end, and then solve all the multiple choice question and answer session, and then if required you can do an illustration which is given about the chapter. And if you are confused in some provision, then refer only that provision. Otherwise the latest recapitulate or revision session given by ICA is far enough. Like, you don't have to do anything else for this chapter. These are the small chapters of the GST. Next, so who can raise a tax invoice? Obviously, an unregistered person cannot issue a tax invoice. That will be a crime. If you are registered, if you are not registered under GST, and if you are issuing a tax invoice, then that is a fraud, GST fraud. And therefore, an unregistered person should never issue a tax invoice. At the same time, a registered person who is a composition dealer under section 10, or he has opted a presumptive scheme for services, which we have studied under section 10, cannot issue a tax invoice. Instead of that, they will issue bill of supply. तो ये देख लेते हैं, a registered person supplying taxable goods and services, yes, can issue a taxable invoice. And अगर आप RCM में हो तो RCM में क्योंकि सामने वाला आपको tax invoice नहीं देगा, तो you have to raise tax invoice on that person. Receiving taxable goods and services from unregistered supplier under RCM, ठीक है ना, अंडर सेक्शन 9(4). तो ये RCM की बात हो रही है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। नेक्स्ट सर, टाइम लिमिट क्या है टैक्स इनवॉइस इश्यू करने का? इफ यू रिमेंबर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर एरिया व्हेन वी वर डूइंग द टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर. दिस वाज ऑलरेडी डन, बट स्टिल आई विल गो थ्रू इट वंस. For services, the time limit is within 30 days from the date of completion of service, but if you are a banking company, insurance company, then it is 45 days. For goods industry, if goods involves movement of goods, so obviously at or before time of removal, if there is no movement of goods, if you remember warehouse का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, then at the time of delivery of the goods, जब आप डिलीवरी डॉक्यूमेंट बनाओगे तब, और फिर मैंने आपको एक मम्मी के कुकर का एग्जांपल दिया था कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस, तो भैया 6 मंथ के अंदर इनवॉइस इश्यू कर दो, या एट एक्सपायरी ऑफ द 6 मंथ कि मैं आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा, बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और विद इन द 6 मंथ फ्रॉम द रिमूवल व्हिचएवर इज अर्लियर. तो जब आपका कंफर्म हो जाता है रिमूव सेल्स, मतलब आप सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस पे दे देते हो, और 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सामने वाला बोलता है हाँ ठीक है, आई एम गोइंग टू परचेज दिस गुड्स, तो 2-3 हफ्ते में आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. मैक्सिमम 6 मंथ का टाइम दिया, विच इज लाइक अनएक्सेप्टेबल. 6 महीने कौन लेता है गुड्स को एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने सेफर साइड पे एक्सटेंडेड टाइम लिमिट दिया हुआ है. इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको याद होगा पाइपलाइन सर्विस के केस मैंने बताई थी, इस केस में सक्सेसिव पेमेंट या सक्सेसिव स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू होता है, उसके पहले आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. और इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, मैंने आपको वोडाफोन का और मेरा एग्जांपल दिया था, जहां पे ड्यू डेट कंफर्म होती है, पेमेंट की ड्यू डेट पहले पता होगी, तो ड्यू डेट के पहले तो आएगा बिल. जब मेरे से बिल लेना है उनको, तो ड्यू डेट के पहले बिल आएगा. मेरा और आपको राज क्लासेस का या एनी इंस्टीट्यूशन का जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो मैंने आपको बताया था कि मेरे जिस इंस्टीट्यूशन के साथ काम करता हूं, तो हमारा ड्यू डेट फिक्स नहीं होता, लेकिन जब जब मैं पेमेंट मांगता हूं मुझे पेमेंट मिल जाता है. तो पेमेंट आने के पहले मुझे इनको इनवॉइस देना पड़ेगा बिफोर एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है ना. और अगर आप इवेंट बेस्ड काम करते हो कोई ना कोई, जैसे बिल्डर के केस में आपको बताया था मैंने, ग्राउंड का एक लेवल अलग है, फर्स्ट फ्लोर का लेवल अलग है, स्टेयर्स केस का एक इवेंट अलग है, एलिवेटर इंस्टॉल होना एक अलग इवेंट है, इलेक्ट्रिकल फिटिंग एक अलग इवेंट है. तो अगर आप इवेंट बेस्ड करते हो तो ऑन और बिफोर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा. सर, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का डेफिनेशन भी आप यहाँ पे याद रखो. यहाँ पे सर्विस पीरियड जो होता है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन 3 मंथ्स, ठीक है ना, 3 महीने से ज्यादा होना चाहिए. और सप्लायर ने रेसिपिएंट के ऊपर ऑब्लिगेशन रखना होना चाहिए. देयर हैज टू बी ऑब्लिगेशन ऑन सर्विस रेसिपिएंट टू मेक पीरियोडिकल पेमेंट्स. पीरियोडिकल पेमेंट का एक कंडीशन होना चाहिए. तो इस पर्टिकुलर सप्लाई को हम कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं. इसका डेफिनेशन पढ़ना एडवाइजेबल है. कभी कभी शॉर्ट नोट में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का डेफिनेशन आता है, तो प्लीज डू नॉट इग्नोर दैट डेफिनेशन, आप रीड कर लेना, ठीक है ना.
इंपॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द टैक्स इनवॉइस। वैसे तो टैक्स इनवॉइस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो जो आपको लिखना है। आपने घर के अंदर ही आपने कभी बिग बाजार से शॉपिंग किया होगा, या मोबाइल खरीदा होगा, लैपटॉप परचेस किया होगा, क्लोथ परचेस किए होंगे, दिवाली में शॉपिंग करोगे तो जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन के यहाँ से परचेस करके अलग अलग इनवॉइस देख लेना। नो, नन ऑफ द इनवॉइस विल हैव सेम पैटर्न, ठीक है ना। हर एक इनवॉइस का अलग अलग पैटर्न होगा। सर्विस इंडस्ट्री में यूजुअली इनवॉइसेस टैली में से इशू होते हैं, तो टैली में से जो इशू होता है उसका पैटर्न मैच हो जाता है, क्योंकि टैली एक कॉमन सॉफ्टवेयर यूज करती है सर्विस इंडस्ट्री इंक्लूडिंग माय ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन गुड्स इंडस्ट्री में हर एक इंडस्ट्री का इनवॉइस इशू करने का पैटर्न अलग होता है। तो पैटर्न कुछ भी हो, जीएसटी डिपार्टमेंट ने फॉर्मेट नहीं दिया आपको, जीएसटी डिपार्टमेंट ने फॉर्मेट नहीं दिया कि कौन से फॉर्मेट में टैक्स इनवॉइस इशू होगा, वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कंटेंट क्या होंगे, वो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट क्या होंगे, उसको भी आप थोड़ा आप अपने हिसाब से डाइल्यूट कर सकते हो, लेकिन these are the minimum expected content from the invoice। अब इनवॉइस में होगा क्या क्या, अब जरा कॉमन सेंस से भी अगर याद करने का ट्राई करोगे, थोड़ा भी आपने शॉपिंग किया होगा, तो इनवॉइस में होगा क्या क्या। जीएसटी नाम सप्लाई, सप्लायर क्योंकि रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी नंबर होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव सीरियल नंबर होना चाहिए, डेट होना चाहिए, जीएसटी ऑफ रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, अगर कोई बायर रजिस्टर्ड है तो उसका जीएसटी होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा बी टू बी सप्लाई हुआ है, ठीक है ना। नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो, रजिस्टर्ड होगा तो डालना ही पड़ता है, उसका तो कोई चॉइस ही नहीं है, ठीक है ना। HSN हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, इसका एक्सेप्शन नोटिफिकेशन में आपको पढ़ाऊंगा कि सारे लोगों को मैंडेटरी नहीं, लेकिन जहां जहां पे आप डाल सकते हो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, आपका कोड, गुड्स का कोड या सर्विस अकाउंट कोड आपको लिखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्या क्या गुड्स थे, क्या सर्विसेज था, उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, क्वांटिटी लिखना पड़ेगा, टोटल वैल्यू लिखना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू लिखना पड़ेगा। सर टोटल वैल्यू और टैक्सेबल वैल्यू में क्या फर्क है। बिग बाजार में आप जाओगे तो बिग बाजार में कुछ एग्जाम प्रोडक्ट भी ले सकते हो, टैक्सेबल प्रोडक्ट भी ले सकते हो। अगर टैक्सेबल प्रोडक्ट और एग्जाम प्रोडक्ट साथ में लिया है तो टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आना चाहिए और टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई भी आना चाहिए, और उसके ऊपर टैक्स जो है अलग से, वेदर यू आर अप्लाइंग सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी, वो सारा आपका टैक्स अलग से लगना होना चाहिए। अमाउंट ऑफ टैक्स भी अलग से लिखना होना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई से क्या पता चलता है कि इंट्रास्टेट सप्लाई हुआ है या इंटरस्टेट सप्लाई हुआ है। इंट्रास्टेट हुआ रहेगा तो सीजीएसटी, एचजीएसटी, और इंटरस्टेट हुआ रहेगा तो आईजीएसटी चार्ज करना होता है। एड्रेस ऑफ द डिलीवरी इफ अ डिफरेंट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, कभी कभी बिल टू शिप टू मॉडल होता है, बिलिंग करने वाला ऑर्गेनाइजेशन अलग होता है और शिपिंग कहीं पे और जगह पे होता है। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज या फॉरवर्ड चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज में होता रहेगा तो आपको बताना पड़ेगा, फॉरवर्ड चार्ज में होता रहेगा तो बताने की जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिग्नेचर ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी, इसका भी अभी गवर्नमेंट ने एक्सेप्शन दिया हुआ है कि बिग बाजार वगैरह जैसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहाँ पे डिजिटली इनवॉइस बनते हैं, तो डिजिटली अगर इनवॉइस बनते होंगे तो वहाँ पे फिजिकल सिग्नेचर का मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो आपको दो एक्सेप्शन पढ़ने हैं, सिग्नेचर का एक्सेप्शन पढ़ना है और एचएसएन का एक एक्सेप्शन है, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता दूंगा। आगे चलता हूँ। सर कितनी कॉपी करनी होती है इनवॉइस की इश्यू, तो अगर आपके गुड्स होंगे तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू आएंगे तो 3 कॉपी होंगी। ओरिजिनल कॉपी हमेशा रेसिपिएंट के पास होता है, बायर जो रहता है ना, बायर उसके पास ओरिजिनल कॉपी रहता है, क्योंकि ये जो होता है वो टाइटल ऑफ द गुड्स होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, आपके पास अगर टाइटल ऑफ द गुड्स, आप सोनार के पास कभी अपना गोल्ड चेन बेचने जाओ, आपको पता चलेगा सोनार क्या बोलेगा पता है, गोल्डस्मिथ क्या बोलेगा पता है, इसका बिल कहाँ पे है साहब, क्योंकि आप ही का ये ज्वेलरी है, कैसे पता चलेगा। तो आपके पास बिल होना चाहिए और वो भी ओरिजिनल कॉपी का होना चाहिए। तो ओरिजिनल हमेशा बायर के पास होता है, रेसिपिएंट के पास होता है। ट्रिप्लीकेट कॉपी जो है, कार्बन कॉपी, वो सप्लायर के पास रहेगा, और डुप्लीकेट कॉपी जो है वो ट्रांसपोर्टर के पास भी रहना चाहिए। और ट्रांसपोर्टर शुड नेवर ट्रांसपोर्ट गुड्स विदाउट इनवॉइस, क्योंकि उसको स्मगलिंग माना जाता है। सर्विस इंडस्ट्री में क्योंकि ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होता ही नहीं है, क्योंकि सर्विस तो डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन जाती है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी होती है, ओरिजिनल रेसिपिएंट के लिए, और कॉपी जो होगा डुप्लीकेट वो सप्लायर के लिए होता है। सर सीरियल नंबर आपका होना चाहिए इनवॉइस के ऊपर, और आपको जीएसटी डिपार्टमेंट को बताना होता है एडवांस में कि मेरा सीरियल नंबर क्या होगा। अलग अलग लोग अलग अलग सीरियल नंबर रखते हैं। सीरियल नंबर में अल्फाबेटिकल भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और न्यूमेरिकल तो पक्का होंगे ही होंगे। लेकिन जो भी सीरियल नंबर आप यूज करोगे, ठीक है, पहले तो आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा जीएसटीआर 1 में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, और सीरियल नंबर कैन नॉट एक्सीड 16 डिजिट, ठीक है ना। 16 डिजिट के ऊपर का सीरियल नंबर आपका इनवॉइस का एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि पोर्टल पे उतनी जगह उतनी लिमिटेड उन्होंने करके रखी, जब इनवॉइस वाइज अपलोडिंग होता है तो 16 से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी ये आ सकता है। सर ये रिवाइज टैक्स इनवॉइस करके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट इसमें हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि रिवाइज टैक्स इनवॉइस क्या होता है। तो कुछ कुछ लोगों को जिनको ठोकने की आदत होती है वो क्या बोलते हैं, पहले ओरिजिनल इनवॉइस में अगर कुछ गलती हुई रहेगी तो रिवाइज करके भेजेंगे, ऐसा नहीं है। आप जरा समझने का ट्राई करो। जब जब आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हो, जरा सुनो, जब जब आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन होते हो लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी तक आया नहीं है, जैसे हमने बहुत बार अभी रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हमने बात किया कि 1 नवंबर पे
पर्सन का 40 लाख का टर्नओवर क्रॉस हो गया, ठीक है ना, 20 नवंबर पे उसने अप्लाई किया और उसको रजिस्ट्रेशन मिला 5 दिसंबर पे। लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन होगा इसका इफेक्टिव डेट होगा रेट्रोस्पेक्टिव, और रेट्रोस्पेक्टिव डेट जो एप्लीकेबल होगा वो 1 नवंबर से। तो 5 नवंबर पे तो उसके पास जीएसटी नंबर आ ही गया। तो 5 दिसंबर के आगे तो फिर वो बंदा क्या करेगा, अपना जो इनवॉइस होगा वो पक्का बिल इशू करेगा, कच्चा बिल इशू करना बंद कर देगा। सर क्यों कच्चा बिल इशू करना बंद कर देगा? क्योंकि अभी उसके पास यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है, जीएसटी नंबर है, वैलिड जीएसटी नंबर है, तो यहाँ से अभी टैक्स इनवॉइस इशू होना पक्का चालू होगा। 1 नवंबर के पहले जो सेल हुआ है वो सारे कच्चे बिल थे, ठीक है ना, वो टैक्स इनवॉइस हुए नहीं थे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं थे। आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप जीएसटी का टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते हो। लेकिन जिस दिन से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया हुआ है और एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया हुआ है, मतलब लाइबल टू बी रजिस्टर्ड हो जाता है। इस पीरियड को मैं ड्यूरिंग पीरियड बोलता हूँ। ड्यूरिंग पीरियड मतलब एक होता है बिफोर लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एक होता है आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, और एक होता है ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। ये ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन वाला जो पीरियड होता है, इस पीरियड में आप इनिशियली तो कच्चा बिल इशू करते हो, दुकान तो बंद नहीं करोगे जब तक रजिस्ट्रेशन आएगा, दुकान तो चालू रहती रहेगी। 2 नवंबर पे भी सेल्स होगा, 3 नवंबर पे भी सेल होगा, तो आपका सप्लाई होते रहेगा, लेकिन आप कच्चा बिल इशू करोगे और सारे पार्टीज को बता के रखोगे कि देखो साहब जीएसटी लाइबल है, मुझे जीएसटी कलेक्ट भी करना पड़ेगा, लेकिन सुनो आपको ओरिजिनल इनवॉइस ना मैं थोड़े दिन में देता हूँ, मेरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर पेंडिंग है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन आता है, जितने भी इनवॉइसेस आपने इस ड्यूरिंग वाले पीरियड में इशू किए रहेंगे वो सारे आपको रिवाइज करने पड़ते हैं, उसको बोलते हैं रिवाइज इनवॉइस, ठीक है ना। रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस टू बी इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई इफेक्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। कौन सा पीरियड? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लेके एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के पीरियड के बीच में जो बिल आपने इशू किए रहेंगे पहले, उसको आपको रिवाइज करना पड़ता है। सर मेरे पास एक पर्टिकुलर पर्सन आता है, वो हर दिन हर 2 दिन में कुछ ना कुछ सामान लेके जाता है। अब इस पीरियड में, ड्यूरिंग वाली पीरियड में उसके साथ मैंने 15 अलग अलग ट्रांजेक्शन किए, तो 15 अलग अलग इनवॉइसेस दूं कि एक सिंगल इनवॉइस दूंगा तो चलूंगा? तो अगर सामने वाला बंदा अगर अनरजिस्टर्ड पीरियड, अनरजिस्टर्ड पर्सन होगा, देखो रजिस्ट्रेशन में तो आप कंसोलिडेट दे नहीं सकते इनवॉइस। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसको सामने वाले को क्रेडिट मिलना है, और क्रेडिट मिलने के लिए इनवॉइस वाइज लिंकिंग होना बहुत पॉसिबल, मतलब वो मैंडेटरी होता है, तो लिंकिंग होना जरूरी है। तो प्लीज समझो, कंसोलिडेटेड रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस आप इश्यू कर सकते हो, लेकिन सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड होगा तो, ठीक है ना, आज कर सकते हो। इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई, अब इंटरस्टेट सप्लाई में गुड्स जा रहे हैं यहाँ पे महाराष्ट्र से कर्नाटका, ठीक है ना, तो आप यार यहाँ पे तो आप कंसोलिडेट नहीं कर सकते अगर आपका वैल्यू जो है वो 2.5 लाख से ज्यादा है। 2.5 लाख से अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट इश्यू अ कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस इवन इफ द पर्सन इज अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, ठीक है ना, ये नहीं करना है आपको। पर्टिकुलर्स ऑफ डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स आर आल्सो सेम एज रिवाइज टैक्स इनवॉइस। चलो डेबिट नोट क्रेडिट नोट और रिवाइज टैक्स इनवॉइस की जो पर्टिकुलर्स है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही है। कंसोलिडेट टैक्स इनवॉइस करके कॉन्सेप्ट देख लो। अब सर मेरा स्टेशनरी का शॉप है, और मेरा स्टेशनरी के शॉप में कोई तो पर्सन अगर आता है मेरे यहाँ पे शॉप में, अनरजिस्टर्ड कोई आता है, एक इरेजर लेकर गया 2 रुपए का, उसको भी टैक्स इनवॉइस दे दूं। फिर कोई आता है 5 रुपए का पेंसिल लेके जाता है, और ये जो मेरे जो बायर है ना वो कॉमन बायर है, मतलब मेरे दुकान के बाजू में उनका शॉप है, और यहाँ पे वहां पे से जैसे अभी राज क्लास के बाजू में कोई स्टेशनरी वाला शॉप होगा, तो हमारे स्टाफ को अगर हम बोलेंगे जहाँ स्टेपलर के पिन लेकर आओ, स्टेपलर की पिन लेकर आएगा, बोलेंगे नोटबुक लेकर आ, नोटबुक लेकर आएगा, पेन लेकर आ, पेन लेकर। तो उनके यहाँ पे ना रनिंग अकाउंट होता है इन लोगों का, तो वो बोलते हैं कि छोटे छोटे जो दुकान होते हैं उनको अगर आप हर 2 रुपए 3 रुपए का अगर टैक्स इनवॉइस इशू करना चालू कर दोगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट क्या बनाया, 3 कंडीशन डाले, 1 2 3। अगर आप तीनों कंडीशन कंप्लाई करते हो तो आप एक कंबाइंड इनवॉइस इशू कर सकते हो ऐसे रेगुलर कस्टमर्स को। तो टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड, अलग अलग टैक्स इनवॉइस इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी इशूड कभी, जब वैल्यू ऑफ सप्लाई इज लेस देन 200 रुपीज। तो 200 के नीचे आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई हुआ है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, 200 के ऊपर होगा तो आपके पास वैसे भी चॉइस नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, 200 या 200 से ज्यादा का अगर आपका इनवॉइस होगा तो आपको अलग से टैक्स इनवॉइस बना के सप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसको मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लगता है। 200 के नीचे है तो इनवॉइस इमटेरियल है, ऐसे हम मानते हैं। रेसिपिएंट इज अनरजिस्टर्ड, बायर अगर रजिस्टर्ड होगा तो पक्का वो क्रेडिट डिमांड करेगा, क्रेडिट डिमांड करेगा तो आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जो रेसिपिएंट है खुद से इनवॉइस डिमांड नहीं कर रहा है, भले आपका 180 रुपीज का सप्लाई हुआ है, लेकिन 180 रुपीज का आपका सप्लाई हुआ है, और 180 के सप्लाई पे जो बायर जो है वो अनरजिस्टर्ड है, फिर भी वो डिमांड कर रहा है कि मला इनवॉइस पाइए, आई नीड इनवॉइस, ठीक है ना। अगर वो बोल रहा है कि मुझे इनवॉइस चाहिए तो आपको देना ही पड़ेगा, यू कैन नॉट डिनाई द इनवॉइस। तो 3 कंडीशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 से नीचे है,
recipient is unregistered and recipient is not required to obtain such tax invoice, तो आप इग्नोर कर सकते हो, टैक्स इनवॉइस नहीं भी दोगे चलेगा, ठीक है ना सर। इन सारे केसेस में क्या होता है, फिर वो डे एंड होने के बाद आप सारे दिन भर के ट्रांजैक्शन देख लो और उन सबके लिए एक इनवॉइस मार के रख दो आपके सिस्टम में, क्योंकि जब आपका सीए जब आपका जीएसटी कैलकुलेट करेगा, जीएसटी रिटर्न बनाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ बाबा इतना हमने सप्लाई किया था। ऐसे नहीं कि अनअकाउंटेड जाना चाहिए, अकाउंटिंग होना चाहिए, इसलिए इसको कंसोलिडेटेड इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लगता है। Consolidated tax invoice shall be issued for such supply at a close of each day in respect of all such supply, क्योंकि स्टॉक भी तो मेंटेन करना पड़ेगा, सेल्स भी तो बुक करना है, ठीक है ना, और जीएसटी भी भरना है। ऐसे नहीं कि 180 रुपीज का, 170 रुपीज का, 120 रुपीज का सेल हुआ तो जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी लगेगा, लेकिन कंप्लायंस बर्डन आपका जो था वो कम कर दिया। आप सारे छोटी छोटी सेल्स को कंबाइन करके आप एक उसका कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस मार सकते हो, अगर आप 3 कंडीशन कंप्लाई करते हो तो, ठीक है ना। चलो आगे चलता हूँ। सर बिल ऑफ सप्लाई कौन इश्यू करता है, तो बिल ऑफ सप्लाई पहले तो याद रखो कि जो टैक्स चार्ज नहीं कर सकता सामने वाली पार्टी से, वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करता है। अब ऐसे कौन से लोग होते हैं, तो ऐसे लोग होते हैं जो एग्जेम्प्ट सप्लाई या एग्जाम सर्विसेज देते हैं। अब उनको पार्टी से अब क्या नहीं करना होता, टैक्स लेना ही नहीं होता, तो टैक्स इनवॉइस क्यों देंगे, तो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करेंगे। अगर आप कंपोजिशन लेवी में हो सेक्शन 10 के, तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करना है। अगर आप कंसेशनल रेट ऑफ स्कीम ले रहे हो, सर्विस का जो स्कीम था कंसेशनल रेट का, अगर आप वो लेते हो तो अभी आपको भी टैक्स इनवॉइस इश्यू करना अलाउड नहीं है, उसकी जगह पे आप बिल ऑफ सप्लाई इश्यू करोगे। चलो ठीक है। फिर मैंने आपको चिल्ला के टाइम ऑफ सप्लाई के चैप्टर में पढ़ा है कि गुड्स का एडवांस मिलता है तो आप उसके ऊपर जीएसटी नहीं चार्ज करोगे। नोटिफिकेशन 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017 पे वो नोटिफिकेशन आया, गुड्स इंडस्ट्री के एडवांस के ऊपर अभी जीएसटी चार्ज नहीं होता, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री के एडवांस के ऊपर अभी भी जीएसटी चार्ज होता है। आप एडवांस जैसे ही लेते हो आपको जीएसटी भरना पड़ता है। सर तो उस टाइम पे तो इनवॉइस इश्यू होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको शादी का हॉल बुक करने का आपको एक एग्जांपल दिया था कि शादी का हॉल आपने पकड़ लो, आपको शादी करनी है अप्रैल के महीने में, लेकिन आप नवंबर में, मतलब अभी नवंबर में जाके शादी का हॉल बुक कर रहे हो। आपकी शादी के हॉल का खर्चा होने वाला है 10 लाख रुपया, वो सामने वाला बोल रहा है सर 2 लाख रुपया तो आपको अभी देना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपये आपने दिया, तो 2 लाख रुपीज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट देगा, जो डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करेगा वो टैक्स इनवॉइस नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तक सप्लाई नहीं हुआ है। सप्लाई तो होगा अप्रैल के महीने में, ठीक है ना। तो आपको क्या देगा, रिसिप्ट वाउचर देगा। क्या देगा, रिसिप्ट वाउचर देगा, क्योंकि उसने एडवांस लिया। देखो सप्लायर ने जब एडवांस पेमेंट लिया तो रेसिपिएंट को वो रिसिप्ट वाउचर देता है, ठीक है ना, रिसिप्ट वाउचर देता है, तो उसने रिसिप्ट वाउचर दे दिया। सर अगर रिसिप्ट वाउचर अभी हॉल वाला है तो हमको पता ही है कि हॉल का रेट क्या है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो मैं अगर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ और मुझे टैक्स का रेट क्या लगाना है या एग्जैक्टली कौन से टाइप का रेट लगाना है, या सीजीएसटी होगा, एचजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप मेरे यहाँ पे रेगुलर कस्टमर हो और आपका सीजीएसटी भी होता है और आईजीएसटी भी होता है, क्योंकि आपका अलग अलग जगह पे लोकेशन है, ठीक है ना। तो मुझे अगर कंफ्यूजन है, जैसे मैं टीचर हूँ और आप क्लासेस वाले और आपकी क्लासेस 4 स्टेट में है, उस स्टेट में भी है जहां पे मैं हूं, तो सीजीएसटी एचजीएसटी होगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंटरस्टेट अगर सप्लाई होगा, बाकी के स्टेट में अगर होगा, तो सर ये एडवांस जब मैं आपसे लूंगा तो मैं उसके ऊपर कौन सा लगाऊं टैक्स का रेट। तो उन्होंने बोला जब आपको रेट नहीं पता होगा तो 18% लगा देना, और आपको अगर सप्लाई कौन से टाइप का है वो नहीं पता होगा तो उसको इंटरस्टेट मान के आईजीएसटी चार्ज करना, क्योंकि एडवांस के ऊपर टैक्स भरना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। तो उन्होंने वो चैलेंज यहाँ पे वो भी रिमूव कर दिया। सर मैंने जिस लड़की से शादी करनी थी नवंबर में, जिसके लिए हॉल बुक करके रखा था, वो फरवरी में उसको किसी ने प्रपोज किया और वो भाग गई सर किसी और के साथ। सर अगर ऐसा हो गया, अगर आपकी लड़की किसी और के साथ भाग गई है तो आप क्या कर सकते हो, शादी तो होगी नहीं अभी अप्रैल में, तो आप हॉल वाले के पास गए और हॉल वाले को अपनी गम की कहानी सुनाना चालू कर दे कि आजकल के लड़कियों के ऊपर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। ऐसा इमेजिनरी स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको कि जिसके साथ शादी होनी थी वो लड़की भाग गई, दोस्त मेरे अभी मैं क्या करूँ, अप्रैल में तो मेरी शादी नहीं होगी। हाँ ठीक है ना, अप्रैल में जो है वो शादी नहीं होगी। अब मेरे को ना वो आप प्लीज जरा 2 लाख रुपया रिफंड कर दो, ठीक है ना। अब यूजुअली इंडस्ट्री नॉर्म्स क्या होते हैं कि आप एडवांस जब देते हो, डीजे की लड़की भाग गई है क्या, ऐसे क्या कर रहे हो हाँ ठीक है ना। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री क्या बोलता है कि आप रिफंड यूजुअली नहीं करते जब आपने किसी से अगर एडवांस लिया और होगा सामने वाला अगर आपका आके अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहता है तो रिफंड आप नहीं करते। लेकिन जो हॉल ओनर है ना, उसके साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था, ठीक है ना। लड़की भागी नहीं, लेकिन धोखा तो सबके साथ होता है इंडस्ट्री में, ठीक है ना। तो उसको अपने दिन याद आ गए और फिर वो बोलता है यो ब्रो तेरा और मेरा सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है, तेरा 1 रुपया भी मैं डिडक्ट नहीं करूंगा, पूरा का पूरा रिफंड में
पूरा का पूरा एडवांस आपको रिफंड करूंगा। जब वो पूरा का पूरा एडवांस रिफंड करेगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा, तो उसको बोलते हैं रिफंड वाउचर। ये देखो यहाँ पे रिफंड वाउचर का सिचुएशन उन्होंने बना के रखा हुआ है कि रिफंड वाउचर क्या होता है। जब रेसिपिएंट ने यहाँ पे एडवांस दिया तो इसने पहले रिसिप्ट वाउचर दिया था, फिर सप्लाई कैंसिल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ। अब टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं हुआ तो वो फिर वो पैसे जो लिए थे उसका अभी रिफंड दे रहा हो, तो रिफंड दे रहा तो मेरी लाइबिलिटी तो उतने से कम होनी चाहिए। तो उन्हें बोला ठीक है आप एक काम कर दो, रिफंड वाउचर मार दो। आप सामने वाले को, प्यार एक धोखा है तो करो मत करते तो सब हो। हाँ, लिखने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें लिखते हो, नहीं रे बाबा शादी नहीं चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, प्यार एक धोखा है। हाँ, और करते क्या हो मुझे सब पता है, ठीक है ना। हाँ, आगे चलता हूँ। विजय भाई सबको मिलता है, सबका टाइम आता है हाँ, तो दूसरों का मजाक मत उड़ा। देखो आगे चलो चलो रिकॉर्डेड सेशन है, मुझे प्रोविजंस के ऊपर जरा फोकस करने दो, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि इनवॉइस एंड पेमेंट वाउचर इज टू बी इश्यूड बाय द रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज। अगर आप रिवर्स चार्ज में रहोगे तो, क्योंकि रिवर्स चार्ज में क्या होता है, सप्लायर टैक्स भरता ही नहीं, टैक्स कौन भरता है, रेसिपिएंट। तो रेसिपिएंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही टैक्स इनवॉइस इश्यू रेज करे, ठीक है ना। इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ था हमारे क्लाइंट के यहाँ पे कि क्लाइंट बोलता है यार मेरे इनपुट्स के ऊपर मैं क्यों, मेरे इनपुट्स के ऊपर मैं क्यों जीएसटी इनवॉइस रेज करूं, मेरा तो वो इनपुट्स है। लेकिन इनपुट है तो साहब क्रेडिट भी तो आप ही को लेना है, तो आपके भले के लिए हम बता रहे कि आप एक काम करो, सामने वाला तो आपको टैक्स इनवॉइस देने से रहा, वो तो दे ही नहीं पाएगा। तो आप एक काम करो, आप उसका इनवॉइस भी रेज करो और अपने पास संभाल के रखना, और उसके उसको जो आपने पेमेंट किया उसका रिसिप्ट वाउचर बना देना, ठीक है ना। तो वो बना देना। आप देखो यहाँ पे पेमेंट वाउचर बनाने की बात कर रहे हैं हम लोग। वेयर अ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, रिसीव द सप्लाई टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस अंडर सेक्शन 93 जो आरसीएम की बात करता है, जिसका नोटिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ है। और 94 जो रियल एस्टेट केस में मैंने बताया था 80% मिनिमम इनपुट होनी चाहिए। अगर आपको कंसेशनल रेट लेना है 5% 1%, तो 80% मिनिमम आपका इनपुट होना चाहिए रजिस्टर से। 80 के नीचे जितना भी होगा, जितना भी शॉर्टफॉल आएगा उतना आपको आरसीएम लगेगा। इसी कुछ हमारी बात हुई थी, ठीक है ना। सप्लायर इज रजिस्टर्ड और सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, या सप्लायर इज अनरजिस्टर्ड, जो भी है आपको क्या करना है, रेसिपिएंट विल इश्यू पेमेंट वाउचर, क्योंकि पेमेंट दिया है और उसी टाइम पे आपका टाइम ऑफ सप्लाई भी फॉल होता है। अगर आपको पता है तो टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होता है आरसीएम में, कि पेमेंट के डेट पे या 31st डे पे विच इज अर्लियर, और सर्विस इंडस्ट्री में रहेगा तो पेमेंट की डेट पे या 61st डे पे विच इज अर्लियर, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। इनवॉइस देखो कैसे करना है। अब रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, लेकिन वो रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है और वो आरसीएम में, तो वो इनवॉइस इश्यू करेगा अंडर 9394, ठीक है ना। अब सप्लायर रजिस्टर्ड हो, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे सप्लायर भी कर सकता है इनवॉइस, तो वो भी दे सकता है, लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो आपको टैक्स इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। आगे चलते हैं। सर कभी कभी क्या होता है कि गुड्स जो है जब हम सप्लाई करते हैं तो उसमें कभी कभी क्वालिटी डिफेक्ट आ जाता है। जैसे अभी हमने भी जो एल्यूमिनियम लिया था, तो एल्यूमिनियम जब हमने लाया यहाँ पे, तो उसमें का एक जो एल्यूमिनियम बार था वो डैमेज हुआ था। तो हमने हमारे जो सप्लायर है उसको कॉल किया और बोला कि नहीं सर, हमने आपसे 1-1.5 लाख का माल लिया और आप ऐसे डैमेज आइटम हमको नहीं दे सकते। तो अभी हमको उस एक बार का पैसा कट करना था, लेकिन वो इनवॉइस जो आ गया वो आ गया, जितना जीएसटी भरना था मैंने ओरिजिनल इनवॉइस में भर दिया था। अब उसको पैसे कम करके मुझे देने हैं, तो वो इनवॉइस कैंसिल करके नया इनवॉइस नहीं इश्यू करेगा। जब जब इनवॉइस का उसको वैल्यू कम करना होगा, याद रखो एकदम लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जब जब उसको इनवॉइस में का वैल्यू या टैक्स अमाउंट कम करना होगा, तब तब वो इश्यू करेगा क्रेडिट नोट, ठीक है ना। आपके अकाउंट्स का डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग हो सकता है, ये जीएसटी लॉ का डेबिट नोट और क्रेडिट नोट बता रहा हूँ। आपने इनवॉइस ऑलरेडी इश्यू कर दिया है, उस इनवॉइस में का या तो उसको वैल्यू कम करना है तो टैक्स कम करना है। सर टैक्स किसे कम करना है, अब पकड़ लो मैं रेगुलर गारमेंट लेता हूँ, ठीक है ना, या गारमेंट इंडस्ट्री में हूँ और मैं अलग अलग लोगों से रॉ मटेरियल लेता हूँ, मुझे पता है कौन से रॉ मटेरियल के ऊपर क्या जीएसटी का रेट चलता है। अब मैंने जो मटेरियल लेना था वो लेना था 12% का, लेकिन आपकी कंपनी ने मुझे चार्ज किया 18%। तो मैं आपकी कंपनी को फोन करके बता रहा हूँ भैया आपके जो मटेरियल लिया हुआ है वो मैं 50 लोगों से और लेता हूँ, इंडस्ट्री में सारे लोग 12% लगा रहे हैं और 12% ही जेन्युइन रेट भी है उसका, आप 18% ना लो मेरे से। अब उसने क्या कर दिया, आप देखो 18% पे उसने इनवॉइस इश्यू कर दिया है। अब उसको रेट कम करना है, तो रेट कम करना है तो वो 12% वाला क्या करेगा, क्रेडिट नोट इश्यू करेगा।
तो जब जब वैल्यू कम करनी होती है, जब जब वैल्यू कम करनी होती है, तब तक वो क्रेडिट नोट इश्यू करेगा। कभी कभी क्या होता है, गुड्स सप्लाई होता है और गुड्स का पूरा रिटर्न हो जाता है। जैसे हमने अभी लिनोवो का एक लैपटॉप लिया था, वो मुझे लग रहा है अमेजोन वालों ने पहले से यूज लैपटॉप दे दिया था हमको, ऐसा कुछ हुआ था। उसका वारंटी 2 महीने पहले से रजिस्टर्ड दिखा रहा है, थोड़ा स्लो भी चल रहा था लैपटॉप। तो मैंने कंप्लेंट कर दिया, कंप्लेंट करके अभी मेरा वो लैपटॉप रिटर्न चला गया। सेल्स हुआ था, जीएसटी इनवॉइस इशू हुआ था, लैपटॉप उनको डिफेक्टिव लगा, हमने रिटर्न कर दिया। अब अमेजोन वाले हमको इशू करेंगे क्रेडिट नोट। ठीक है ना, अब जरा समझने का ट्राई करो ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे। कभी कभी मैंने सप्लाई किया, गुड्स में क्वालिटी खराब आ गया, वैल्यू कम करना है, क्रेडिट नोट। ठीक है ना, ये सारी बातें आपको याद रखनी, 4 सिचुएशन आपको याद रखने हैं। लेकिन सर मैंने 1 2 3 4 4 इनवॉइस इश्यू किए थे, आपको 4 इनवॉइस इश्यू किए थे, चारों इनवॉइस का वैल्यू कम कर रहे हो, अगर चारों इनवॉइस का वैल्यू कर रहे हो तो मैं 4 क्रेडिट नोट इश्यू करूं कि एक सिंगल क्रेडिट नोट चलेगा? तो ओरिजिनली जब जीएसटी लॉ आया था तो ईच इनवॉइस शुड हैव, मतलब इनवॉइस वाइज क्रेडिट नोट शुड बी इशूड, ऐसा पहले लॉ था। लेकिन अभी लॉ ने बोला नहीं यार, वो कंप्लायंस कम कर दो, 4 सेम पर्सन है, सेम पर्सन की 4 इनवॉइसेस है, तो उसको 4 अलग अलग क्रेडिट नोट क्यों दे रहे हो, सिंगल क्रेडिट नोट भी चलेगा। उस क्रेडिट नोट पे रेफरेंस चारों इनवॉइसेस का दे देना आप। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो, where one or more tax invoices have been issued for supply of any goods or services or both। ठीक है ना, और क्या हुआ है, और क्या हुआ है, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब वैल्यू कम करना है, ये पहला सिचुएशन हो गया। टैक्सेबल वैल्यू इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन एक्चुअल टैक्सेबल वैल्यू, तो मुझे भी वैल्यू कम करना है। या टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज 18%, जबकि मुझे एक्चुअल में चार्ज करना था 12%। टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज ग्रेटर देन टैक्स पेएबल, तभी भी मुझे रेट कम करना है। या गुड्स आर सप्लाइड रिटर्न बाय द रेसिपिएंट, गुड्स रिटर्न ही आ गए, ठीक है ना, तो मुझे वैल्यू कम करनी है। और वेयर गुड्स और सर्विसेज बोथ आर सप्लाइड फाउंड टू बी डिफिशिएंट, डिफिशिएंट मतलब उसकी वैल्यू कम करनी है। तो वैल्यू या टैक्स रेट जहां पे कम होता है, मेरी लाइबिलिटी जहां पे कम होती है, क्रेडिट नोट इश्यू करने से आप समझो, क्रेडिट नोट इश्यू करने से जो टैक्स लाइबिलिटी होती है सप्लायर की, ठीक है ना, सप्लायर की टैक्स लाइबिलिटी वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न है ना, सेल्स करने से लाइबिलिटी बनती है, तो सेल्स रिटर्न करने से लाइबिलिटी कम होती है। ठीक है ना, तो इसको क्रेडिट नोट बोला जाता है। क्रेडिट नोट क्या है वो आप याद रखो, रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मे इशू वन और मोर, अभी उसके बाद चॉइस है, एक देना है तो एक दो, ज्यादा देने तो ज्यादा दो, क्योंकि अलग अलग इनवॉइस के अलग अलग आपको क्रेडिट नोट देने पड़ेंगे। ठीक है ना, मे इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाईज मेड इन द फाइनेंशियल ईयर टू द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो सर डेबिट नोट कब देते हैं? रिवर्स सिचुएशन में, जब वैल्यू मुझे बढ़ानी है, मैंने आपका 10 लाख का काम किया था, 10 लाख का इनवॉइस दे दिया, लेकिन फिर आपने पेमेंट डिले किया, पेमेंट डिले किया तो मुझे आपसे 20,000 एक्स्ट्रा लेना है, तो मैं डेबिट नोट चार्ज करूंगा। सर मुझे आपसे 18% पे टैक्स चार्ज करना था, लेकिन मैंने टैक्स 12% पे चार्ज किया है, मुझे वैल्यू बढ़ानी होगी या टैक्स का रेट बढ़ाना होगा, अगर मुझे लाइबिलिटी बढ़ानी होगी, डेबिट नोट इश्यू करने के बाद सप्लायर की लाइबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, टैक्स लाइबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना, तो वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इश्यूड, देखो पहले तो टैक्स इनवॉइस इश्यू होना ही चाहिए, क्योंकि टैक्स इनवॉइस को मॉडिफाई किया जा रहा है यहाँ पे बाय इशूइंग डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। और एक बात आप याद रखो, वेदर इट इज अ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, दोनों होते इशू, दोनों इशू करने वाली अथॉरिटी जो होती है वो वही होती है जिसने ओरिजिनल इनवॉइस इशू किया था, और ओरिजिनल इनवॉइस जो इशू करता है वो यूजुअली सप्लायर होता है। ठीक है ना, where one or more tax invoice have been issued for the supply of any goods or service or both, and taxable value in invoice is less than taxable value in respect of the supply, मतलब वैल्यू मुझे बढ़ानी है अभी, और टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन टैक्स पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, मतलब मुझे टैक्स बढ़ाना है। ऐसे दो सिचुएशन में रजिस्टर्ड सप्लायर, सप्लायर ही करेगा, मे इशू वन और मोर डेबिट नोट्स टू द रेसिपिएंट ऑफ द गुड्स और सर्विस और बोथ। तो ये मैंने आपको ये बता दिया कि ये क्या क्या है। अब इस चैप्टर में मुझे आपको एक एक्सेप्शन पढ़ाना है जो एचएसएन को लेके है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो ऊपर मैंने आपको बताया था कि मैंडेटरी होता है, उसका एक एक्सेप्शन है।
ये टेबल आपको याद रखना पड़ेगा, ये आगे भी आएगा किसी चैप्टर में, आने वाला है एक दो बार। तो ये टेबल याद रखो। अगर आपका एनुअल टर्नओवर लेस देन 1.5 करोड़ है, देखो जीएसटी लॉ बोलता है एचएसएन लिखना मैंडेटरी, लेकिन 8 डिजिट कोड है यार। अगर आप स्टेशनरी शॉप रहोगे तो आपके यहाँ पे 50 टाइप के गुड्स होते हैं, तब सबके एचएसएन थोड़ी ना के याद रखोगे, ठीक है ना। तो इट विल बिकम ट्रबलसम जॉब फॉर यू। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, आप अगर छोटे मोटे डीलर हो 1.5 करोड़ तक का बिजनेस करते हो तो एक काम करो, आपका एचएसएन लिखना आपके पास ऑप्शन है, आप नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा। और 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में, तो 2 डिजिट भी चल जाएगा। वैसे तो ओरिजिनल एचएसएन 8 डिजिट का होता है, लेकिन मिनिमम 2 डिजिट तो सबको पता होता है। तो स्टेशनरी आइटम, कम से कम स्टेशनरी आइटम में अंदर जो डिफरेंस है वो नहीं लिखो, लेकिन ओवरऑल क्या बिजनेस करते हो तो हमको पता होना चाहिए। और अबव 5 करोड़ होगा तो भगवान प्लीज मिनिमम 4 डिजिट के एचएसएन आपको लिखने पड़ेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जहां पे हमने क्या क्या इश्यू डिस्कस किया, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। फिर से एक लेंगे क्विक छोटा सा ब्रेक और फिर रिज्वाइन करेंगे 645 को। 645 को रिज्वाइन करेंगे, ई वे बिल की कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे 645 ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। तो प्लीज ज्वाइन मी एट 645, ये वीडियो तब तक प्रोसेस हो जाएगा। टाटा बाय बाय, चाय वगैरह पी लो, चाय पी के आ जाना।